So question number 27 of sample paper number 8. Define the consumer responsibilities and duties of consumer. Consumer responsibilities and duties same ही है. Responsibility and duties कोई एक. Consumer should know about all the rights. He should know about all the rights. Yes. Good. He should buy only standardized goods. Standardized goods he should buy. Yes. One more. Consumer should not forget to take cash memo. Not forget to take cash memo और bill वगैरह है ना. Document जो और उसको चाहिए. Yes. Consumer should carefully read the label. Should be. Should carefully read the label. Read the label. Okay. He should read the label. ठीक है. Consumer should buy those products which will not harm the environment. Should be eco-friendly goods. Should use eco-friendly goods. आपने एग्री किया. बोल दिया. Consumer should file against genuine grievances. Yes. He should file against genuine grievances. Please clear को साथ साथ में. Point में लिखना है genuine grievances. Labeling. बाकी वो subject object लग जाएगा बीच में. Point लिखो. Sentence मत वहाँ पे first form use करने के third form use करने कुछ नहीं होता. और business studies, accounts, economics, physical, maths, computers, grammatical errors की marks नहीं करते हैं except English. Grammatical error आपकी sense वहाँ clear होनी चाहिए. अगर आपकी grammatical error से sense ही change हो जाए बात अलग. फिर बात अलग है. आपने has लगाना था आपने have लगा दिया marks नहीं कटेंगे except English. क्योंकि English में language सिखा रहे हैं आपको यहाँ हम language नहीं सिखाते. ठीक है? नहीं कटते हैं marks. Don't be very particular about this. Sense clear होनी चाहिए आपको. Anything else? Any responsibility of consumer which Sir, be aware of false advertisements. he should be aware of the false advertisements. Okay. Yes, sir. The consumer should be honest in his dealings. Honesty. How? और मतलब legal But charges. What he should do to be honest? He should take proper bills if he is That is purchasing not something. honesty actually. Proper bill कह देते हैं चलो आपने Proper bill. proper bill मतलब He bill should की follow legal. amount ज़्यादा कम ना कर देना चलो ठीक है. He should obtain bill that is one duty. He should obtain proper bill है ना that is another duty. लेकिन वहाँ पे हम इसको ना कर नहीं पाएंगे जस्टिफाई दो पॉइंट में अलग अलग लिखे होंगे या फिर हम वहाँ पे एक्सप्लेन करें उसको एग्जांपल लेके फिर है ना इसको एक में ही रखना या फिर एक्सप्लेन कर देना कि कैसे दो पॉइंट डिफर कर रहे हैं. संजीत कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर. पेपर में कुछ नहीं लिखा हुआ जब मैं क्वेश्चन पूछ पहले पेपर लिखना शुरू कर देते हो. बुक तो नहीं आपके पास सोल्व तो नहीं आपके पास. फिर हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं. 5-6 हमने बोल दी आप एक और आंसर देते बस. चलो कोई 5 यहाँ से रिपीट करो जो पहले हो गई अपने वाले नहीं छोड़ तो कोई 5 रिपीट करो. शुरू करो एक करो पहले. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर. क्या खाते हो ग्रोसरी शॉप पे जाके? लीगल गुड्स एंड सर्विसेज. Consumer must file a complaint if he is not satisfied with the product. Yes, अभी 2 पॉइंट्स हैं. He must file a complaint. He must file a genuine complaint. ये 2 पॉइंट्स ये भी अलग अलग हैं. ठीक है जसमीन. Consumer must follow guidelines given on the product. Yes, he must follow the guidelines. Yes, और Consumer should form consumer societies if needed. yes, he should form consumer societies. He should be a part of that. Only educated consumer जो है वही दूसरे consumer का educate कर सकते. चलिए ठीक है. इसने कितनी पूछी थी यहाँ? 4 marks तो 4 पूछी है. Next 28th question is describe the affecting price. किसका होगा? Describe the factors. Factor word लिखा factors affecting price determination. जो आपने चीज बेचनी है छोड़ो एनसीईआरटी की बात है. अभी एनसीईआरटी को कल गई मैं तो ये पढ़ाई नहीं हुआ मैं क्या करूँगी मैं क्या करूँगा. आपने बिजनेस करना है आप चीज बेचोगे किस रेट पे बेचोगे पहले आप क्या देखोगे? एक चीज वैल्यू देखोगे. Product cost. कॉस्ट देखेंगे पहले. प्रॉफिट तो लेना है बिजनेस तो हम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हैं. पहले मैं कॉस्ट देखूंगा मेरी सारी कॉस्ट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है. सारी कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती है? प्रोडक्शन कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस का Fixed variable. फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट वो जो फिक्स्ड रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. चाहे हम 1000 गुड्स बनाए चाहे हम 10,000 गुड्स बनाए
वो कॉस्ट उतनी पड़ेगी हमें। हमने सपोज एक बिल्डिंग ली हुई है रेंट पे, है ना, बिल्डिंग ली हुई है रेंट पे और उसमें सपोज 10 कमरे हैं, हम 10 कमरों का रेंट दे रहे हैं। हम चाहे 5 कमरे यूज करें, चाहे हम 3 करें, चाहे हम 10 करें, वो हमारी फिक्स उस रेंट में रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जितनी ज्यादा हम बना रहे हैं उतनी ज्यादा पड़ रही है। सपोज वेरिएबल कॉस्ट इज 5 रुपीज पर यूनिट। अगर हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे हमें पड़ेगी कॉस्ट 5000। अगर हम 10 बनाएंगे हमें 10,000। वेरी करेगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद द लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो दोनों कॉस्ट मैंने कवर कर दी, व्हिच मीन टू से कि टोटल कॉस्ट मैंने कवर कर दी, तभी तो मैं प्रॉफिट भी शेयर कर पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कवर्ड, इट इज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड जी, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कैसे इफेक्ट करेगा? कैसे कि वैल्यू में देखिए कि ये प्रोडक्ट मतलब सर ये डिमांड ये कि प्रोडक्ट की आपको हेडिंग्स आते हैं, मैं बताऊंगा आपको, आपकी बताऊंगा प्रॉब्लम मेरे पास लोग सिर्फ कॉस्ट की थोड़ी आ जाएंगे या एक लिख के आ जाएंगे, वहां हम ये मेंशन करेंगे द बिजनेसमैन द कंपनी शुड बी एबल टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। इससे हमारी 3 4 5 लाइंस भर जानी है, सफिशिएंट है। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर गप मारती रहेगी, वो आपका जो क्वालिटी है आंसर की वो कम हो जाएगी, वो जो आंसर में बात नहीं आएगी। आपको मैटर भी होना चाहिए, है ना, मैटर भी होना चाहिए, नॉलेज भी है, आपको पता है, लेकिन आपके पास सेंटेंसेस नहीं है उसको लिखने के लिए, नहीं है बोलने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए। अब मेरे को पता है कि डिमांड का आपको, क्योंकि मैं क्यों समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये पॉइंट ऐसा है। सपोज मेरी जगह कॉमर्स वाला ना हो कोई, आपने बताना हो, आपके पास आंसर नहीं, मेरी बात समझ रहे? और मेरे को तो पता है ना, आपने कहा डिमांड, में कहा हाँ डिमांड, तो मेरे को पहले ही पता है इसका आंसर क्या है। आपने थोड़ा सा कहा, थोड़ा सा मैं समझ गया, क्योंकि मेरे को पहले ही पता था। अगर मेरी जगह तो ऐसा खड़ा हो जिसको पता ही ना हो, सपोज ये मैं बोलूँ कि मैं लेमैन हूँ, मैं समझाऊँ, आपके पास मैटर नहीं रहेगा। आपने ऐसा लेमैन आंसर देना, उसको आपको नहीं पता वो कौन चेक कर रहा है, कैसे चेक। आपने ये मानना है कि आपने हर चीज जो है उसको बतानी है टू द पॉइंट वाले मेथड में। एक्सप्लेन एंड नेसेसरी पढ़ाना नहीं है उसको हमें, लेकिन इतना तो बता देना है कि इससे सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। मैटर के मार्क्स करते हैं, हेडिंग याद कर लेते हैं, लास्ट तक हेडिंग ही पढ़ते रहते हैं हम। कई बच्चे तो हेडिंग जो है वो ऐसा भी करते हैं, वो अदरवाइज गुड वे, एक जगह में मेरे हेडिंग लिखे होते हैं, एक नोटबुक में या किसी नोटबुक में लास्ट चैप्टर पेजेस पे जाके ना, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हेडिंग लिखे होते हैं। बुक भी ऐसी एक है, उसने भी दिया हुआ है लास्ट पे जाके माइंड, कोई ऐसे रखते हैं माइंड क्या, माइंड मैप, इसके एंड में हर चैप्टर के एंड हर चैप्टर के एंड में बुक ने क्या किया है, सारे चैप्टर्स के जहां जहां इंपॉर्टेंस आ रही है, इंपॉर्टेंस रखी गई है इस टॉपिक में, सारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सारी इंपॉर्टेंस एक जगह पे, सारे फीचर्स एक जगह पे, सारे प्रोसेसेस एक जगह पे, उसने ऐसे ग्रुपिंग की हुई, ऐसा भी है गुड वे। बट द पॉइंट इज की मैटर है, मैटर ना हो तो वहां क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है। जितना कोई पॉइंट समझने में इजी है ना, उतना वो लिखने में कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसको छोड़ देते हैं कि आता है ये तो, लेकिन हमने आंसर वहाँ ओरल नहीं करना है, हमने वहाँ आंसर राइटिंग में करना है। हमारे पास मैटर और क्वालिटी का मैटर होना चाहिए। ठीक, कौन सा पॉइंट था आपका? डिमांड। किसी को एक्सप्लेन करेगा? यहाँ पे जो पॉइंट आना है ना, मैं हल्का सा बता दूं, इलास्टिसिटी वाला पॉइंट ऐसे ही है ना, ये जो कोस्ट की बात करें, फिक्स कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, यहाँ ये पॉइंट जो है अपने आप मैटर बन जाना है। आपने सारा याद करना है, आपने इलास्टिक और इनइलास्टिक याद करना है वर्ड, उसके बाद तो लिख ही लोगे आप। बताइए इतना जी। Elastic goods are those goods which have a changing demand, and in this case, producer sets a lower price for these goods, whereas inelastic goods are those which do not change their demand; they have a fixed demand. So, in this case, producer can charge a high price so that they can fetch high profit. It depends on whether the product has elastic demand or inelastic demand. है ना? If the demand is elastic, suppose, then the prices will be इलास्टिक मतलब जल्दी चेंज लगती है, then competitive prices will be there. If the demand is inelastic, then higher prices can be set. Inelastic चेंज नहीं होनी, necessities इसमें आ जाती है, पेट्रोल डीजल इसमें आ जाता है,
हाई प्राइसेस कैन बी सेट। अगर कोई डिमांड जो है उसकी इलास्टिक है सपोज, तो उस केस में जो है वो प्राइसेस जो है वो उस हिसाब से करेंगे। ठीक, देन फोर के पॉइंट दो लेना, क्योंकि पॉइंट आपके पास होने हैं 7 7 8 8 9 बुक में दिए होंगे पूछ जाएंगे आपसे 3, तो 3 अच्छे वाले पॉइंट लेना, वेटेज वाले पॉइंट। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। यस, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो प्राइसेस कम होंगे, अगर कंपटीशन कम है तो प्राइसेस हाई होंगे। डिपेंड करता है। कंपटीशन ज़्यादा, उल्टे वाला इनवर्स रिलेशन, कंपटीशन ज़्यादा है प्राइसेस कॉम्पिटिटिव होंगे, लेस होंगे, एंड वैसे। और भी पॉइंट Objective of the business. If the objective of the business is to capture the maximum market share, the prices will be competitive. If the objective is profit maximization, prices will be higher. prices will be higher. ठीक है। And if the objective is to be a leader in the business on the basis of quality, we can say, then again the prices will be higher. क्योंकि जब वो क्वालिटी पे जाएगा उस केस में उसको प्राइसेस हाई सेट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ अच्छी इनपुट दे रहा है ना, डिपेंड करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और Government regulations. Some product prices are fixed by the government, so the company has to charge the same price for the that product. जहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी वहाँ प्राइसेस गवर्नमेंट के हिसाब से करने पड़ेंगे। हम पहले ये एग्जांपल यहाँ पे इस पॉइंट में डीजल की पेट्रोल की ले लेते होते थे, बट कुछ साल पहले डीजल और पेट्रोल डीरेगुलेट हो गया, मीन नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनीज कि वो प्राइसेस डीजल के, पेट्रोल के, कैरोसिन के और सीएनजी के और ये गैस के, एलपीजी गैस के क्या रखते हैं उन पे है, आगे गवर्नमेंट सेट करती होती है। अब ये एग्जांपल ले सकते हो, आप ले सकते हैं हम सब्जियों के जैसे रेट्स बढ़ जाते हैं ना, प्याज का रेट 2 महीने पहले 100 रुपये हो गया था, जबकि ये काइंड ऑफ नेसेसिटी है हमारे इंडिया में, ये जहाँ पे सब्जी वगैरह बनाते हैं, दाल वगैरह, तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट फिर क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बंद कर देती है कि वहाँ का सामान ज़्यादा बिकेगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, रेट अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्राइस सेट करने पड़ते हैं। अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशन वहाँ पे है तो प्राइसेस फिर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को देख के सेट किए जाएंगे। अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है नहीं या कम है तो प्राइसेस कंपनी अपने हिसाब से, बिजनेस अपने हिसाब से कर सकता है। और कोई पॉइंट है तो बता दीजिए। Marketing method used. मार्केटिंग मेथड यूज, यस। It depends upon the company which promotion method they are used for promoting they are using for promoting their product. For example, if they are using advertising, the cost will be less as compared to the method if they are using personal selling. पर्सनल सेलिंग में ज़्यादा होगी, डिपेंड करता है प्रमोशन कैसे हो रही है। कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसको प्राइस ज़्यादा हो, कोई कंपनी नहीं कर रही उसको प्राइस कम होगा, तो एडवर्टाइजमेंट अल्टीमेटली विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द सेल्स। ऐसी करेगी ना, कॉस्ट ऑफ द गुड्स इंक्रीज कर देगी। अगर कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट, दोनों कंपनी एडवर्टाइजमेंट, एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है जैसे वैल्यूएशन का, एक कंपनी कर रही है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो है एडवर्टाइजमेंट के कंपैरेटिवली थोड़ी कॉस्टली होती है, थोड़ी अगर मास रीच करनी है पॉपुलेशन की तो उस केस में है ना, थोड़ी महंगी पड़ती है, कॉस्टली होती है। पर्सनल सेलिंग पॉसिबल ही नहीं होती। पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजमेंट जो है पर्सनल सेलिंग से थोड़ा सा कंपैरेटिवली इन केस व्हेन द कंपनी वांट्स टू रीच मास पीपल, मास पॉपुलेशन, देन इट इज इकोनॉमिकल है। ठीक है, हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि नहीं कर रही। एक कंपनी कर रही है उस कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका प्राइस ज़्यादा होगा, एक कंपनी नहीं कर रही है तो उसका प्राइस कम होगा। ठीक है, और कोई है पॉइंट? Purchasing power of consumer. Purchasing power of consumer, type of consumer, income level of the consumer। बिल्कुल, अगर हम जो है वो चीज़ बना रहे हैं फॉर LIG ग्रुप की, लोअर इनकम ग्रुप की, देन हमारे प्राइसेस कम हैं। अगर हम बना रहे हैं मिडिल इनकम के हिसाब से हमारे प्राइसेस थोड़े से एवरेज से रहेंगे, तो क्या कहते हैं उसको, मॉडरेट से रहेंगे। और अगर हम बना रहे हैं हाई इनकम ग्रुप के लिए फिर कोई प्रॉब्लम, प्राइसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने के प्राइसेस ये मर्सिडीज के और बाकी गाड़ियों के बढ़ जाते हैं ना, जितने बढ़ जाते हैं उतने में कई गाड़ियाँ आ जाती हैं, है ना, ऐसे ही है। Explain any two components of physical distribution of goods. Any two components of physical distribution देगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट और बोल दो ये, वेयरहाउस। और एक बोल दो। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ये सारी, 11th में करी थी ना, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और बस। पापा का बिजनेस ही है ना, तो कराई उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह कराई हुई इंश्योरेंस
कोई शॉप की या वैसे कोई इंश्योरेंस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। कस्टमर से कैसे बात करते हैं, फिर बताना हो कस्टमर को फिर सारी चीज़ आ गई है जी, आगे ले जाओ। कस्टमर ने कहा था जब ये चीज़ आएगी आपके पास नहीं है, मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। कैसे करते हो? फ़ोन ही करते हैं, मुकाबला फ़ोन ही करते हैं ना। फिर बैंकिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी जो है ये आपकी ऑब्जेक्टिव्स टू ट्रेड थी जो 11 में पढ़ी थी, ये सारी जो है आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वेयर हाउसिंग भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, इंश्योरेंस भी, बैंकिंग भी सारी आ रही है, सारी आ रही है। ठीक है बच्चे, इसको बताने की एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं, बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह। देन इज क्वेश्चन नंबर 29, state any 4 points which highlights the importance of management. Importance of management क्या नवजोत इसका आंसर importance of chapter 1 lecture number 2 और 3 better coordination कैसे? सर जो मैनेजमेंट है वो जो मैनेजर है पहले सबको बता देगा कि ये काम करना है, तो वो मैनेज कर पाएगा, तो सब अपना अपना काम करेंगे और बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और ग्रुप एक्टिविटी और सेम पॉइंट नहीं करना ये अलग है नहीं, ये ही करना है, ये करना है। यस नाशा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. इट इज ऑल परवेसिव, ये इंपॉर्टेंस है, ये फीचर है। इंपॉर्टेंस उसका बेनिफिट्स का होना चाहिए ना, ये फीचर इट्स कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट इज ऑल परवेसिव, ये फीचर में ले लिया मतलब इंपॉर्टेंस लिखा है उसमें नहीं, फीचर बनता है। बताओ तो इंपॉर्टेंस। Management helps in taking future decisions. इन तक ही सुनना है मेरे को, इन In taking future decisions. फ्यूचर डिसीजंस। ठीक है, एक्सप्लेन कर। सेल्फ मेड पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द स्पॉट पॉइंट। छोटे होते ना अंताक्षरी खेलते हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। बता देना, मैंने 2 पॉइंट सुनने हैं आपसे, जब बताए जा रहे हैं बाकी आपका स्कोर कम हो रहा है। Helps in achieving objectives of organization. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ऑब्जेक्टिव सेम ही है वैसे, अलग आएगा। हाँ जी, बताना कुछ आप, मैं आपको हर बार ऑप्शन दे रहा हूँ। Increases efficiency. इंक्रीज एफिशिएंसी, Effectiveness. इफेक्टिव है, मेरे को पता ही आपसे बाकी ये कोई पॉइंट नहीं है, जितने पॉइंट ये बोल रही है ना कोई सही नहीं। हाँ जी, Helps in the person development. पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ, अब ये मत कहना कि सोशल एक्टिविटी, ये मत कहना, कहो ना फिर ये पॉइंट helps in fulfilling social सोशल, ये पॉइंट है जो है वो सुनती रहिए। हेल्प्स इन फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, पर्सनल भी हो गया और सोशल भी, 3 पॉइंट लग लगे। जस्टिन, Management helps to allocate resources. टू एलोकेट रिसोर्स, वैसे बुक में तो नहीं है मेरे ख्याल से वाला optimum utilization. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। यस, Management helps to work in dynamic environment. डायनामिक एनवायरनमेंट में कुछ और भी पॉइंट्स हो गए, कोई नहीं है, कोई 5 जिन्होंने बोले। Management helps in achieving social objective, personal objective, and optimum utilization of resources. Helps in increasing efficiency and effectiveness of the business, and helps in achieving organizational goals. ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, Optimum utilization. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, Dynamic environment. डायनामिक।